very, very warm welcome to you, ma'am. त्याचबरोबर श्री भूषण गगरानी जी, ऑनरेबल म्युनिसिपल कमिशनर BMC यांचं सुद्धा आपण टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करणार आहोत. Managing Director and CEO of NSC, Shri Ashish Kumar Chauhan is also here. Please put your hands together, everyone. A very, very warm welcome to Municipal Corporation. A very, very warm welcome to you, sir. Please put your hands together for Srimati Amruta Devendra Fadnavis. A warm welcome to you, ma'am. Banker, singer, social activist and a founder of Divyaj Foundation. जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड श्री आशीष कुमार चौहान. I would like to extend a warm welcome to Srimati Pallavi Srivastava, trustee Divyaj Foundation. May I request Shri Kevin Shah, co-team member of Divyaj Foundation, to join us on the stage. हुआ काम इसी तरह हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता रहे, अग्रसर हो. कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये. Thank you. We would like to felicitate Shri Bhushan Gagrani, Honorable Municipal Commissioner BMC. Can we have a round of applause for him, everybody? On behalf of the Divyaj Foundation, we will now felicitate the Managing Director and CEO of National Stock Exchange of India Limited, Mr. Ashish Kumar Chauhan. Thank you. I would like to request Mr. Ashish Kumar Chauhan, the Managing Director and CEO of National Stock Exchange of India Limited, to kindly felicitate our dignitaries on behalf of NSC, beginning with Shri Bhushan Gagrani ji. Mrs. Amruta Devendra Fadnavis, Madam. जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत. We would now like to welcome Mrs. Pallavi Srivastava. Next, we would like to felicitate Mr. Kevin Shah. Thank you, Mr. Chauhan. You may now take your seat. All of you can take your seat now. I would like to thank all the dignitaries for their contribution and for gracing us with their presence today. Ladies and gentlemen, some journeys are not just about the growth, but about making a difference. Divyaj is one such inspiring name, redefining excellence with innovation and purpose. Their impact-driven initiatives are transforming lives. And now we're going to take a closer look at their remarkable journey. Can we have the AV, please?
Honorable Commissioner, Mumbai, Shri Bhushanji Gagrani, Srimati Amritaji Fadnavis, members of the DVH Foundation, distinguished guests, colleagues, ladies and gentlemen. It's a significant moment today as we gather here before the upcoming International Women's Day to witness a partnership that embodies the spirit of investor awareness, the financial literacy, empowerment and inclusivity. I would like to extend my special thanks to Srimati Amrita Fadnavis. Madam, your commitment to social welfare, especially to women empowerment, is an inspiration to many. NSE is witness to your active involvement and efforts for the empowerment of women. Only a few months back, in your presence, we took another significant initiative on empowering gig workers, especially women workers. I am happy to learn that DVH Foundation is dedicated to uplifting the marginalized and underprivileged sections of society by enhancing their quality of life. The Foundation's commitment to empowerment through knowledge, skill development, and financial support, and active involvement in various efforts in education, financial independence, medicines, skill development, health and nutrition, cleanup drives, women empowerment, etc. is inspiring. This year is NSE celebrating completion of its 30 years of operations. NSE has had a significant impact on the lives of millions of Indians through a fair, efficient, and transparent market ecosystem. At NSE, our vision is to enable the financial well-being of people. NSE works at a very large scale, conducting investor awareness programs for financial awareness of the people. We have implemented student skilling programs and have also signed MOUs with several state governments like Uttarakhand, Meghalaya, Chhattisgarh, Assam, and Goa. Srimati Pallavi Srivastava to kindly come forward, and may I request Sri Ram Krishnan, Chief Business Development Officer, NSE, to join us on the stage. This MOU will be exchanged in the presence of all the esteemed dignitaries present on the dais, requesting everyone to kindly come forward. Let's have a huge round of applause, ladies and gentlemen. This partnership will mark a new era of financial empowerment for women through specially curated investment awareness program. Congratulations to DVH and the National Stock Exchange of India Limited. Once again, heartiest congratulations to both the organizations on this impactful collaboration. And now, ladies and gentlemen, this initiative would be incomplete without a symbolic bell ringing ceremony, requesting all the dignitaries to kindly step ahead towards the bell. Ringing the bell will officially launch this program, this collaboration, requesting all the dignitaries to kindly ring the bell and mark the beginning of this new era. May I request Sri Ram Krishnan also to join us? Sir, can we do it once again? Yes, can we please do it once again? The MOU has been exchanged, ladies and gentlemen. As I said, this partnership will mark a new era of financial empowerment for women through specially curated investment awareness program. ये साझेदारी, ये partnership जो है महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की नई शुरुआत देगी.
नमस्कार, गुड आफ्टरनून. आजच्या या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित असणाऱ्या सन्माननीय अमृताजी फडणवीस, NSCचे CEO आणि MD आशिष चौहानजी, दिव्यज फाउंडेशनचे श्रीमती पल्लवीजी, केविनजी, महापालिकेचे DMC प्राची जांभेकर, या ठिकाणी उपस्थित असणारे NSCचे सर्व अधिकारी, दिव्यज फाउंडेशनचे सर्व अधिकारी कार्यकर्ते आणि महिला बचत गटाच्या सर्व महिला कार्यकर्त्या, पुन्हा एक वार नमस्कार. सगळ्यात पहिल्यांदा मी अभिनंदन करतो दिव्यज फाउंडेशन आणि NSC या दोघांनी या ठिकाणी MOU केलेला आहे आणि अर्थसाक्षरता, फायनान्शियल लिटरसी या संदर्भामध्ये आपल्याला काही गोष्टी सांगितल्या जाणार आहेत, शिकवल्या जाणार आहेत. आम्ही आत्तापर्यंत अनेक स्वयंसेवी संस्थांचे अनेक क्षेत्रामधली कामं पाहिलेली आहेत. विशेषतः आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, महिला बालकल्याण अशा क्षेत्रामध्ये, वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये अनेक चांगल्या स्वयंसेवी संस्था आपल्याकडे काम करत असतात, NGOs. पण फायनान्शियल लिटरसी किंवा अर्थसाक्षरता हा पूर्णपणे ज्याच्याकडं आत्तापर्यंत फारसं NGO क्षेत्रामध्ये कुणीही लक्ष दिलेलं नाही, अशा एका क्षेत्रामध्ये दिव्यज फाउंडेशननी पाऊल ठेवलेलं आहे. आणि मला वाटतं हे अत्यंत दुर्लक्षित असणारं असं जे क्षेत्र आहे हे महिलांसाठी तर महत्त्वाचं आहेच, पण पूर्ण समाजासाठी सुद्धा दिशा देणारं आहे असं मला स्वतःला वाटतं. आयुष्यामध्ये प्रत्येकाला आर्थिक स्थैर्य पाहिजे असतं, बरोबर आहे. पण आर्थिक स्थैर्य हे केवळ पैसा कमवण्यामधनं येत नाही, तर आलेला पैसा हा कसा गुंतवावा, कुठं गुंतवावा, त्याच्यामधनं आपल्याला काय उत्पन्न होणार आहे, जगामध्ये अर्थक्षेत्रामध्ये काय चाललेलं आहे, या सर्वांची जाणीव असणं, या सर्वांची माहिती असणं हे देखील तेवढंच महत्त्वाचं आहे. संकल्प उन लोगों को मदद करने का जो अपनी जिंदगी में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. समाज के हर वर्ग को साथ लेकर दिव्यज फाउंडेशन एक उज्जवल भविष्य की ओर अपना कदम बढ़ा रहा है और इस नेक पहल को और मजबूती देने का काम एक खास शख्सियत कर रही है जो आज हमारे बीच मौजूद है. वो ना ही सिर्फ सामाजिक कार्यों में बल्कि महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण में भी समर्पित है. Ladies and gentlemen, it's my privilege to invite Mrs. Amruta Devendra Fadnavis, a founder of the Divyaj Foundation, a dynamic leader and a social activist, a champion of women-led empowerment, to kindly join us on the dais and address the gathering. एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे अमृता देवेंद्र फडणवीस जी का. Come on everyone. मंचावर उपस्थित श्री भूषण गगरानी जी, श्री आशीष कुमार चौहान जी, बिग FMच्या रजनी जी, येथे उपस्थित स्वयंसेवी संस्था यांच्या स्त्री शक्तीला नमन, BMC टीम, स्पेशली प्राची मॅडम, टीम NSC ज्यांनी हे घडवून आणलेलं आहे, दिव्यज टीम जे सगळे कोऑर्डिनेशन्स पाहत होते, पल्लवी, कविन, आणि माझ्या प्रिय भगिनींनो नमस्कार. आज यहाँ स्त्री शक्ति उमड़ के आई है और उमड़ के ऐसी आई है कि आपने आपके स्वयंसेवी संस्था के द्वारे पंख तो मिल गए आपको, पर अब वो पंख लेके उड़ना कैसे है वो भी सीखना पड़ता है. सिर्फ पंख दिखाने के नहीं होना चाहिए. ऐसे कहते हैं अपने लाइफ टाइम में हमें क्या करना रहता है, लर्न सीखना पड़ता है, अर्न कमाना पड़ता है,
और आगे के एजेस में रिटर्न वापस करना पड़ता है। पर उसमें मुझे एक एडिशन आपको वो देने की इच्छा होती है, एक एडिशन कीजिए, लर्न, अर्न, मेक योर मनी अर्न अँड देन रिटर्न. जेव्हा तुमचा पैसा तुमच्यासाठी काम करेल तेव्हाच तुम्हाला वेळ मिळेल की तुम्ही दुसऱ्यांसाठी आणि स्वतःसाठी काम करू शकाल. फायनान्शियल लिटरसी हा कार्यक्रम याचा हा पहिला बॅच आहे आणि हा विचार माझ्या मनात कसा आला हे मी तुम्हाला 1 मिनिटात सांगते. मी काही गावांमध्ये पण जाते आणि तिकडे कामं करते स्त्रियांसाठी, तिकडल्या इन्फ्रासाठी. और वैसे ही मैं एक नागपुर के रिमोट विलेज में गई थी जहाँ पे मैं एक स्त्री से मिली. वो महीने के 20,000 कमा लेती थी, स्टिचिंग करती थी, एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी, पर वो बड़ी दुखी थी. उसमें उसके इनफैक्ट चेहरे पे एक आध दाग भी दिखा मुझे. मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो मुझे कहने लगी कि क्या है, मैं कमाने तो लगी हूँ पर कमाने के बाद मुझे नहीं समझता कि मैं वो एक्स्ट्रा पैसे का, घर के जो ग्रोसरीज है वो लेने के बाद एक्स्ट्रा पैसे का क्या करूँ. तो मैं वो शुरुआत में अपने पति को देने लगी और अभी हक से पति पूरे पैसे मुझसे लेने लगा है. और उसके बाद उसको व्यसन, दारू की आदत लग गई जिसकी वजह से मेरा पूरा घर बर्बाद हो रहा है. अब मैं ये जो बात कर रही हूँ एकदम फेमिनिस्ट मुझे मत समझिए. ये एक आधी केस ऐसी होती है कि स्त्रियों को समझता नहीं है उनके पैसों का क्या करना और घर के बुजुर्ग को देती है. बहुत अच्छी बात है ये, उसमें कोई गलत नहीं है. पर मुझे पर्सनली लगता है कि इसके आगे आपको एक स्टेप अब लेनी चाहिए. समय आ गया है. क्यों आ गया है? क्योंकि हमारे पूरे कैरेक्टर में ही है कि हम घर का नियोजन करें. प्राचीन कालीन आपने हमारी दादियों को देखा होगा, हमारी मम्मियों को मटकों में, गेहूं में, चावल में पैसे रखती थी जमा करके, सोना रखती थी जमा करके. क्यों? क्योंकि घर पे कल उन्हीं के घर पे कोई आपातकालीन स्थिति आ गई आगे जाके, या घर में शादियाँ, त्योहार या ज़रूरत के दिन हो तो वो स्त्री आगे बढ़ के घर की रक्षा कर सके, संरक्षण कर सके. और वो ही आज की भी स्त्री को करना है. We have to do it now. It is high time. And we have to do it because हमने पढ़ लिख के और कमाना चालू करके एक विंग्स, हमको पर तो मिल गए पर हमने उड़ना सीखा ही नहीं. हमने अपना पैसा खुद कहाँ डालना है ये सीखा ही नहीं. और शुरुआत में अगर आपको लगता हो अरे हम कैसे करेंगे, तो मुझे यकीन है आप कर लेंगे. यकीन इसीलिए क्योंकि आपको हर चीज़ जो घरेलू चीज़ है वो आज आती है. आप बाहर भी काम करते हो और इस सब के पीछे क्या निरंतरता लगती है. आपने रेगुलरली थोड़ा सीखा तो आप कर पाएंगे, आप इन्वेस्ट कर पाएंगे. और आप सब तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग हो, स्वयं सेवी संस्थाओं के लोग हो, आप जानते हो कि पैसा कैसे बनाना. पर एक सर ने भी जैसे टिप्पणी दी, मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आप जानते हो पैसे कैसे बनाने, पर पैसा कहाँ से उधार लेना ये भी समझने की ज़रूरत है. इसीलिए ज़रूरत है कि कुछ साहूकार तो 2-3% दिन का लेके आपको लूट सकते हैं. ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. और कौन सी संस्था आपको कम दर पे ब्याज देगी. ऐसे भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, स्कीम्स है जो आपको हार्डली निग्लिजिबल परसेंटेज पे आपके बिजनेस के लिए ब्याज देती है. ये सब आपको जानना ज़रूरी है. और ये ब्याज मिलने के बाद, बिजनेस के बाद, आपके रिपेमेंट के बाद जो पैसा आपका रह जाता है उसको कैसे इन्वेस्ट करना. आज हम जैसे सर ने बोला कि एक टेम्पल है, इन्वेस्टमेंट का टेम्पल है ये NSC हाउस, यहाँ खड़े हैं. और सबसे अच्छे कुछ ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट के जो ये लोग आपको बताएंगे चालू होंगे एकदम ही सिक्योर इन्वेस्टमेंट से. FD हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, गोल्ड ना लेते हुए फिजिकल गोल्ड बॉन्ड्स लेना हो जिससे आपकी गोल्ड की सिक्योरिटी बनी रहे. या कई गवर्नमेंट स्कीम्स भी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा सेव रखने के लिए. माझी कन्या भाग्यश्री, नेशनल पेंशन स्कीम, प्रोविडेंट फंड, ऐसे बहुत सिक्योर ऑप्शंस एक तरफ है. और दूसरी तरफ ऑप्शंस है खुद इक्विटी के. इक्विटी यानी डायरेक्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करना,
हमारे मार्केट्स के थ्रू, बीएससी एनएससी के थ्रू। पर क्योंकि ये आपको एकदम से बोला तो आपको लगेगा ओ गॉड मैं कैसे करूँगी, हे भगवान मैं कैसे करूँगी। तो चालू आप छोटे छोटे एसआईपी से कर सकते हैं, छोटे छोटे अमाउंट मंथली आप डाल सकते हैं और सिक्योर फंड्स में डाल सकते हैं, डायरेक्ट इक्विटी में ना डालते हुए। और इस तरीके से आपका पैसा जब आपके लिए काम करने लगेगा, आपके टारगेट्स शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म टारगेट्स जो रहते हैं, उसके लिए जब ये पैसा काम करने लगेगा तो आप उड़ान भर लेगी उस वक्त। तो मैं चाहती हूँ जो भी स्त्रियाँ आज यहाँ हैं, आप आपकी उड़ान की पहली सीढ़ी यहाँ से चालू करें। और वो पहली सीढ़ी है नॉलेज, लर्निंग। आपको जानना पड़ेगा कि मार्केट क्या होता है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है इन्वेस्टमेंट के। हम लोग एकदम लकी है गगरानी जी की आपकी वजह से स्त्रियाँ यहाँ आ पाई, हमारी बहनें यहाँ आ पाई, और आपके कोऑर्डिनेशन की वजह से आपको ये अवसर मिला है। और जब ये अवसर मिला है, इसका सोना करना ये आपके हाथ में है। अवसर हाथ में लीजिए, एक सशक्त स्त्री, सशक्त भारतीय नारी की आप पहचान बनिए। दूसरी स्त्रियों को भी आप प्रेरित कीजिए की हाँ आपको उनको आगे आना आहे, त्यांना पुढे यायचं आहे आणि दुसऱ्या स्त्रियांना पण प्रेरित करायचं आहे की त्यांनी इन्व्हेस्टमेंट करावी, निवेश करावा। आपल्या देशाची जे प्रधानमंत्री आहेत त्यांनी $5 ट्रिलियन इकॉनॉमी हे स्वप्न पाहिले आपल्या देशासाठी। आणि हे स्वप्न जो स्त्री वर्ग आहे आपला, तो जर पुढे येऊन एकदम पुढे येऊन त्यांनी जोपर्यंत ही कमान नाही हातात घेतली तोपर्यंत होणं शक्य नाही आहे। तर म्हणून मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करते, आपल्या घरासाठी, आपल्या आसपासच्यांसाठी, आपल्या सोसायटीसाठी आणि स्वतःसाठी इन्व्हेस्टमेंटचं जे हे टूल आहे, वेगवेगळे ऑप्शन्स आहेत, ते समजून घ्या, आपल्या गरजा समजा, त्याला मॅच करा आणि तुम्हाला पुढे जाण्यात कोणीही थांबवू शकत नाही त्यानंतर। एवढंच म्हणून मी आपले 2 शब्द संपवते। आमचा हा पहला बैच है, पहला बैच है ये अपना। बस इतना ही बोलूँगी कि आप में से कुछ लाडली बहनें भी होंगी जो लाडली बहन स्कीम के भी फ़ायदा उठाती होंगी। तो अगर पूछने जाऊँ आपसे तो कुछ बोलेंगी हम इससे साड़ियाँ लेती है, कुछ बोलेंगी हम बच्चों की शिक्षा में उसे यूज़ करते हैं, कुछ बोलेंगी घर की ग्रोसरीज लेती है। उसमें से भी कुछ अमाउंट निकाल के आप इन्वेस्ट करो, छोटा छोटा अमाउंट, और देखिएगा ये छोटे छोटे अमाउंट्स ही आपको लखपति दीदी और फिर करोड़पति दीदी बना देगा आने वाले दिनों में। इतना ही बोल के मैं अपने 2 शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मीडिया को रिक्वेस्ट करूंगी। सबको नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि जागतिक महिला दिन 8 मार्च को है। उसके प्रत्यार्थ हमने ये एक बहुत खूबसूरत ऐसा उपक्रम रखा है जिसका नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसमें फाउंडेशन दिव्यज फाउंडेशन ने टाई अप किया है एनएससी के साथ और बीएमसी के साथ। हमारा इसमें उद्देश्य है कि हर स्त्री जो आज पढ़ लिख के कमाने लगी है, वो अपनी कमाई का जो पैसा आता है वो उसका कैसा निवेश करे, वो भी खुद समझे। इन्वेस्टमेंट के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं निवेश के, वो समझे, और इस तरीके से उसके सशक्तिकरण का एक सर्कल होता है वो पूरा होगा। और यही हमारा इसमें उद्देश्य है कि स्त्री सही मायने में सशक्त हो, उसको उसने कमाया हुआ पैसा कैसा उसे उपयोग करके उसकी बढ़त करनी है, ये वो खुद सीखे। विच मीन्स कि वो स्त्री सीखे कि हाउ टू लर्न, हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू अर्न, एंड हाउ टू लर्न दैट मनी शुड अर्न फॉर इटसेल्फ। तो ये उसका एक उद्देश्य है, एंड वी आर ट्राइंग टू अकम्प्लिश इट विद द हेल्प ऑफ एनएससी। आशीष चौहान जी ने हमें इसमें बहुत मदद की। एनएससी प्रेमाइसेस में हम ये कर रहे हैं, और बीएमसी के सेल्फ हेल्प ग्रुप से हमने ये उपक्रम चालू किया है, विच विल कंटिन्यू every month, every quarter। अलग अलग ग्रुप्स को हम टारगेट करेंगे।
आज जे ट्रेनिंग चालू होतं आहे एकतर ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या स्त्रिया आहेत म्हणजे स्वयंसेवी संस्था तर त्यांना जर व्याज घ्यायचा आहे तर कुठून घ्यायचा त्याचं कंपाऊंडिंग कसं होतं कुठनं व्याज घेतल्याने त्यांच्यावर जास्त ओझं नाही येणार हा एक पार्ट आहे त्याचा. दुसरं आज जनधन योजनेच्या मार्फत आपल्याकडे सगळ्यांकडे अकाउंट्स आहेत KYC आहे तर वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट्स कोणते आहेत इन्व्हेस्टमेंटचे स्त्रिया आधीपासूनच पुरातन कालापासनं सोन्यात इन्व्हेस्ट करायच्या आणि त्यांची त्यांची ॲक्युमेन दाखवते इन्व्हेस्टमेंटची किंवा आपल्या मडक्यांमध्ये ते पैसे टाकून ठेवायचे ती त्यांची सेविंग अकाउंट होती. तर आता त्याच्या पुढे निघायचं आहे की तिच्या पुढे काय ऑप्शन्स आहे. डायरेक्ट गोल्डमध्ये न इन्व्हेस्ट करता गोल्ड बॉन्ड्स गोल्ड ETFs आहेत मग त्याच्या व्यतिरिक्त अजून खूप ऑप्शन्स आहेत जसे गव्हर्मेंट बॉन्ड्स फिक्स्ड डिपॉझिट्स नॅशनल पेन्शन स्कीम्स प्रॉव्हिडंट फंड्स आणि त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही हळूच कसे शेअर मार्केटमध्ये एंट्री घेऊ शकता रिस्क न घेता SIPच्या द्वारे किंवा वेगवेगळे डेट इन्स्ट्रुमेंट्स किंवा इंडेक्स फंड्सच्या द्वारे. त्याच्यानंतर तुम्ही डायरेक्ट इक्विटीमध्ये कसे एंटर करू शकता हे सगळं त्यांना वेरियस रेशिओज ते सगळं पण पुढच्या टप्प्यांमध्ये शिकवणार. पण हे आता हे जे आहे ते बेसिक ट्रेनिंग आहे यांचं आणि त्यात खूप पुढे वेगवेगळे उपक्रम पण आहेत वेगवेगळ्या. मला तर वाटतं पत्रकारांसाठी पण करायला पाहिजे हे. तुमच्यातील तुम्ही सगळे लोक खूप मेहनत करता फील्डवर तुमचा पैसा तुम्ही जेव्हा फील्डवर धावताय तेव्हा स्वतःहून धावायला पाहिजे. तर त्यासाठी तुमच्यासाठी पण मी एक उपक्रम सजेस्ट करणार आहे. थँक्यू. थँक्स. I would just say this is for every man that the woman you love is not just a creation of God, she is also a creator. So you love her, respect her and always strengthen her by being by her side. हमारे बहुत सारे वेंचर्स और साइड बाय साइड चालू है. अगर आप अंदर होते तो आपने हमारा ये भी देखा होता. स्त्री सशक्तिकरण के लिए एक तरफ है दूसरी तरफ मेल न्यूट्रिशन के लिए हम पालघर में हमने एक मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट स्थापना करने का ब्लूप्रिंट बनाया है. और उसके अलावा हमारे सफाई से लेके अलग अलग तरीके से के अभियान जो अपने मुंबई के लिए अपने महाराष्ट्र के लिए अपने देश के लिए जो पॉजिटिविटी लाते हो कल्याणकारी हो ये सब हम हर स्तर पे चाहे ब्लड डोनेशन हो हर स्तर पे हमने चालू रखा है. थैंक यू. हमारा एक जो है बच्चे बोले मोरिया गणपति के टाइम उसमें हमने इको फ्रेंडली गणेशा कैसे सब लोग प्रमोट कर सकते हैं वो एक चालू किया था. और एक स्कीम है मिट्टी के सितारे जिसमें हम गरीब बच्चों को म्यूज़िक का एजुकेशन देते हैं और उन्हें सही एक्सपोजर दे रहे हैं. तो अलग अलग छोटे छोटे उपक्रम हमारे चालू ही रहते हैं. I just told her one thing, but I will say कि every woman is unique. Know your color, know your abilities, be confident, and just fly. And the sky is the limit. Thank you. एक्चुअली मैं यही कहूँगी कि बहुत गर्व की बात है कि आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया मुझे यहाँ आने का मौका मिला. दिव्यज फाउंडेशन जो अमृता फडणवीस मैम जी का है आई थिंक ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है उनकी तरफ से क्योंकि ये हमारी महिलाओं को एम्पावर करता है और उन्हें ये ताकत देता है कि जो उनकी जैसे आपने कहा जो उनकी सैलरी है या जो भी उनकी सेविंग्स है उसे वो इन्वेस्ट कर सके. और इसीलिए आई थिंक ये जो एक लिटरेसी जो यहाँ पे कहा गया है कि एक जो लिटरेसी प्रोग्राम है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हर चीज़ वहीं से शुरू होती है कि ये कैसा किया जाता है उसके बाद उसकी सफलता होती है. तो आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है. जी
आई थिंक हर इंसान का अलग अलग होता है, तो इस पर वो कुछ कहना या उस पर कुछ ये देना थोड़ा सा गलत होगा। पर आई थिंक कि मैं यही कहूँगी कि जो अपने हिसाब से जो जितने कंफर्टेबल हो उस हिसाब से इन्वेस्ट करे तो वो आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा। So I would just like to take this moment and say thank you that Divyaj Foundation invited me here today. I'm very very grateful to Amruta ji that she invited me here today, because I think that this is such an incredible step towards women empowerment. I think that I think this collaboration is something that is so strong, so powerful, and I am actually really, really honored to be here alongside all of these people, speaking about, the empowerment of women, and especially I think the fact that it teaches women something, and it's a topic that I think is new to a lot of people, and I think that there is so much to learn, and I think that I am also learning about this subject myself. So I think that it is a great initiative, and I am just here to extend my great wishes and good wishes to all of them. And what do you think that for the Women's Day for this financial education, how you will just give message for the women, all the women? I would just like to say a very happy Women's Day firstly to everybody, and I hope that we continue to break glass ceilings, inspire each other, be it spiritual, be it financial, in every aspect, and I just wish everyone a happy Women's Day. Yeah, thank you. मॅडम समोर बघा. सर्वरजी मॅडम समोर. तुम्ही इथे नाही पाहिलं. सर्वरी मॅम इथे. समोर बघा ना एकदम समोर. थँक्यू.